پہلے ہی آپ نے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا، یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے دھوم۔ ہاں ہلو، بات کیجیے۔ ہلو جی بولیے، کون؟ جی غالب صاحب، غالب جی صاحب جی جی میں جمشید علی بات کر رہا ہوں دلی سے۔ جی دلی سے؟ جی شیخ صاحب، میں جو ہے طارق جمیل صاحب کا بہت بڑا فین ہوں، اور ایک میں نے ان کی تقریر سنی، وہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو تھوڑا آپ اس کی وضاحت کر دیں گے؟ بھائی مجھے سمجھ میں آئے گا تو میں وضاحت کر دوں گا، ورنہ بہتر تو یہ تھا کہ آپ انہی سے پوچھ لیتے۔ اچھا، مطلب وہاں پہ جو تقریباً وہ تقریر کر رہے ہیں تو تقریباً 1000-1500 کا مجمع وہاں پہ موجود ہے، اور تقریر میرے یہ سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ رہی ہے، میرے سر سے بات اوپر جا رہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ حشر کے میدان میں تمام مومنوں کو اپنے ہاتھ سے شراب پلائے گا۔ دوسری بات انہوں نے یہ بولی کہ اللہ تمام حوروں کا خود میک اپ کرے گا۔ تیسری بات انہوں نے یہ بولی کہ اللہ اپنے چہرے میں سے نور حوروں کے چہرے پہ ڈالے گا۔ تو یہ تین باتیں جو ہیں میرے سر سے پار جا رہی ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یا تو کسی حدیث میں یہ باتیں ہوں تو اس کی مجھے وضاحت کر دیجئے، یا قرآن کی آیت میں کہیں ہو تو وہ اس کی وضاحت کر دیجئے۔ بڑا کنفیوز ہوں حضرت میں۔ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ کوئی بھی بات خود ہر بات کا سب سے زیادہ مطلب جاننے والا خود متکلم ہوتا ہے۔ اچھا تو مطلب سامنے والا، انکار نہیں کر سکتے۔ اچھا مطلب سامنے والا کی اگر کچھ بھی بولے تو اس کو سن کر کے اور مان لینے کا، ایسا؟ میں وہ نہیں کہہ رہا، پہلے آپ میرا اصول سنیے۔ میں کہہ رہا ہوں جو بات آپ کر رہے ہیں جی تو سب سے زیادہ اور سب سے اچھے طریقے سے سمجھنے والا آپ اس بات کو خود ہیں، یعنی سب سے زیادہ معنی اور مطلب اس کو آپ ہی خود سمجھنے والے۔ اچھا اب رہی بات یہ کہ جہاں پر مولانا نے یہ استعمال کیا کہ اللہ اپنے ہاتھ سے کرے گا، شراب پلائے گا، حدیث کے اندر آتا ہے۔ جی سنیے میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی ہو سکتا ہے کہ مولانا اس سے بہتر بات آپ کو بتا دیں، جی اور بہتر بات تو یہی ہے کہ جب تک وہ زندہ ہیں تو ان سے جو ہے پوچھا جائے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہم جو ہے تمل میں لوگ، ہمیں سمجھ میں نہیں آئی آپ کی بات، جی یا اگر وہ دنیا سے فوت ہو جائیں تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کے جو ہے کلام کا ایک اچھا مطلب نکالنا ایک مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن باوجود اس کے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، اگر آپ حدیثوں سے آپ کو نسبت ہوگی اور آپ حدیث دیکھتے ہوں گے، ایک حدیث آپ کے سامنے آئی ہوگی، ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ سنیے آپ نے یہ حدیث کبھی؟ جی لیکن میں جہاں تک جانتا ہوں حضرت، قرآن کے اندر بھی آیا ہے ید اللہ من فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، لیکن یہ آیت متشابہ ہاتھ میں سے، اور متشابہ آیت سے عقیدہ بنانا حرام ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پہ جو آپ حدیث پہ جو استدلال کر رہے ہیں، سنیے حضرت سن لیجیے، آپ مجھے بھی بولنے دیجیے نا۔ جس حدیث سے آپ نے استدلال کیا ہے، اپنی بات ہی مکمل نہیں کی۔ نہیں آپ نے تو حدیث پڑھ دی نا حضرت، آپ نے جس حدیث کا مجھے حوالہ دیا ہے، ہاں سن تو لیجیے، جس حدیث کا آپ نے مجھے حوالہ دیا ہے اس حدیث کی شرح میں صاحب شرح کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد اللہ کا ہاتھ نہیں لیا جائے گا، آپ اللہ کا ہاتھ وہاں سے مراد لے رہے ہیں۔ ہاں کون؟ جی میں کہہ رہا ہوں جہاں پر ید اللہ یعنی ہاتھ کا ہاں لفظ وہاں سے صاحب شرح نے کہا ہے کہ یہاں سے اللہ کا ہاتھ تصور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن میں آیت متشابہ آیت پہ سے عقیدہ لینا حرام ہے، تو یہاں سے بھی نہیں لیا جائے گا عقیدہ حضرت، کیونکہ پہلے قرآن ہے، قرآن کے اندر میرے بھائی جب آپ اس بات کو سمجھتے ہیں، ہاں چلیے سمجھائیے، آپ سمجھائیے، میں خاموش ہوں، آپ سمجھائیے، آپ وضاحت کیجیے، میں خاموش ہوں، وضاحت کیجیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس بات کو سمجھتے ہیں تو اور اعتراض کس بات پر ہے آپ کو؟ اعتراض یہ کہ پھر یہ کفریہ بیان ہے نا حضرت، جو کفریہ بیان ہے تو دارالعلوم دیوبند نے طارق جمیل سے فتویٰ کیا لگایا ہے، یہ جاننا ہے مجھے یہ جاننا ہے کہ تو پھر اللہ خود بیان کرتا ہے۔ جی
नहीं, अल्लाह पाक, सुनिए, मैंने कहा, आपने कहा कि कुरान में है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। जी हाँ, तो अल्लाह ताला कुफ्र बयान करता है, इसका मतलब क्या बयान करता है? नहीं, आपने कहा ना ये कुफ्र है। तो अल्लाह इसका ताला मतलब ये कुफ्र हुआ कि बयान नहीं अल्लाह पाक करता है। कुफ्र बयान करता है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, आप झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह ताला कुफ्र बयान नहीं करता। अल्लाह ताला की इस बात को आयत मुतशाबिहात, जैसे सूरह आले इमरान आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाता है कि कुछ लोग मुतशाबे आयत के पीछे पड़ जाते क्या हैं। मतलब होता है? मुतशाबे आयत से अकीदा लेना हराम है। ये तमाम साहिब तफसीर, चाहे रूहुल अमानी उठा लीजिए, सूरह तफसीर मदारिक उठा लीजिए, तफसीर जलालैन शरीफ उठा लीजिए, साहिब तफसीर ने यही कहा है कि मुतशाबे आयत से अकीदा लेना हराम है। और दूसरी चीज सुन लीजिए, कुरान के अंदर खुद इसकी वजाहत है। आले इमरान आयत नंबर 7 में अल्लाह फरमाता है कि कुछ लोग मुतशाबे आयत के पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें पीछे नहीं पड़ना मुतशाबे आयत के हजरत। तो आप तो पीछे मुतशाबे के पीछे आप पड़ गए ना भाई। तो आपके तारिक जमील साहब ने जो ये वजाहत की है तकरीर में कि अल्लाह खुद अपने हाथों से शराब पिलाएगा, हजरत इसकी रहनुमाई कीजिए, बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे इस तकरीर को सुन के। और ये नेट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह पड़ी है हजरत। जब आप ये बात जानते हैं कि मुतशाबिहात के पीछे नहीं लगना चाहिए, तो आप ऐसे धड़ल्ले से बयान कैसे कर देते हैं? आप लोग ऐसे धड़ल्ले से बयान कैसे कर देते हैं कि अल्लाह अपने चेहरे में से नूर देगा हुरों को? अगर हम ये कहें कि अल्लाह ने अपने नूर नहीं, अगर हम ये कहें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी हैं, बशर भी हैं, तो आप हम पे फतवा लगा देते हैं। यार तारिक जमील साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी कि अपने चेहरे में से नूर देगा हुर को, तो अपने चेहरे में से नूर देने वाले पे फतवा क्या आएगा, ये बताइए। देखिए, तारिक जमील साहब ना हमारे मुल्क के हैं, ना मेरा उनसे कोई रिश्तेदारी है, ना वो मेरे मतलब तो ये कह दीजिए कि दारुल उलूम देवबंद से उनको खारिज किया जाता है। नहीं, आप ये कह दीजिए कि दारुल उलूम देवबंद के वो बानी नहीं है, हम उनको खारिज करते हैं, इतना बोल दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। अरे दारुल उलूम सुनिए ना, दारुल उलूम जिसको खारिज कर दे वो खारिज नहीं हो जाएगा, समझे? दारुल उलूम इस्लाम नहीं, का नाम आप अपना पल्ला तो झाड़िए पहले हजरत, पहले आप अपना पल्ला झाड़िए। आप ये कहिए कि भाई हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है, वो देवबंद के नुमाइंदे नहीं है। बात दुरुस्त है ना? कौन सी दुरुस्त बात है? हम चाहे सुनिए, मुतशाबे आयत से आप अकीदा ले रहे हैं, अवाम के बीच में लेकर के आ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि आप अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। और अल्लाह, और एक चीज और उन्होंने बोली है तकरीर में कि अल्लाह खुद जमीन पे आ करके और बंदे के कंधे पे हाथ रख के कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो, और रो रहे हैं वो तकरीर के अंदर। इस तरीके की कुफरिया बातों से आप अवाम के बीच में क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अल्लाह का तसव्वुर, पूरा का पूरा अल्लाह का तसव्वुर आप सामने लेके आ रहे हैं? मतलब एक बुत बना दीजिए ना, देवबंद में एक बुत बना दीजिए, उस पर अल्लाह लिख दीजिए, उसी की पूजा चालू करवा दीजिए फिर। अरे मेरे भाई, आप जब ये बात जानते हैं कि मुतशाबिहात के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, मुतशाबिहात सिर्फ कुरान में नहीं होता है, हदीस में भी होता है, ठीक है जी। जिस हदीस में है, जिस सुन रहे हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है हजरत, मैं सुन भी रहा हूँ, मैं समझ भी रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई जाहिल जपट तो हूँ नहीं, मैं कोई जाहिल जपट तो हूँ नहीं कि मैं नहीं समझूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं सुन भी रहा हूँ, मैं आवाम में ये मैसेज। अरे मेरे भाई, मैं आपको समझने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सुनने की बात कह रहा हूँ कि आपको आवाज आ रही है। जी हाँ बिल्कुल आ रही है, सुनाइए। और कह रहा हूँ आपको, सुनाइए। मैं ये कह रहा हूँ, आप उस हदीस का मतलब मुझे बताइए, उस हदीस का मतलब मुझे बताइए जिसमें अल्लाह कहता है कि मैं पहले आसमान पर आ जाता हूँ, समझे? मेरे शाबान को मैं पहली आसमान पर आ जाता हूँ, और उस हदीस का मतलब बराए करम ये हदीस पेश कर दीजिए, इसका बाब बता दीजिए, किताब का नाम बता दीजिए, सफा नंबर बराए करम बता दीजिए जरा, फिर मैं आपकी वजाहत करता हूँ। सुनिए, तो ठीक है, ये हदीस हजरत, ये हदीस हवाला चाहिए, सुनिए मेरी बात, ये हदीस फजाइल अमाल में लिखी है, आप वहाँ से पेश कर रहे हैं, मुझे मालूम है, मैं पढ़ चुका हूँ उसको। इसमें भी आप इसमें भी फंसेंगे, इसमें भी बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे, आप इसमें भी बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे, लेकिन अभी मौजूद ये नहीं है। ये है कि आपको, इसका मतलब ये है कि आपको जवाब नहीं चाहिए, आप मुझसे बहस करने के लिए नहीं हजरत, मैंने आपसे बड़े प्यार से पूछा कि इस हदीस की वजाहत कर दीजिए, जवाब सुनना है। जी जी जी, आप बहुत, एक मिनट खामोश। देखिए, एक आपसे गुजारिश है कि इस हदीस का बाब नंबर, सफा नंबर, किताब का नाम और हदीस मुझे बता दीजिए, ताकि मैं अभी इसको खोल के पढ़ लूँ। तो ये हदीस फजाइल अमाल है और आपकी अकाबिर में लिखी है। मैं आपको, अल्लाह पहले आसमान पे आता है, पहले तो आपने कुफर यही बोल दिया,
आपने ये अकीदा बना लिया कि अल्लाह पहले आसमान पे आता है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इस हदीस का क्या मतलब है? माज़अल्लाह, अरे तो मैंने क्या बोला, आप मुतशाबी आयत से अकीदा बनाना हराम है, आप उसको पेश भी नहीं कर सकते किसी के सामने, आप तो पेश कर रहे हैं मेरे सामने। अल्लाह अकबर, मैं तो आपको इल्जामन पेश कर रहा हूँ, क्योंकि आप चलिए, आप बराए करम अदम वाक़ियत में आप जी हजरत, बराए करम, देखिए लोगों की रहनुमाई हो जाएगी हजरत, लोगों की रहनुमाई हो जाएगी माशाअल्लाह, मेरा भी काम हल हो जाएगा, आपका भी लोगों की रहनुमाई हो जाएगी। बराए करम इस हदीस का बाब और इस हदीस की किताब का नाम और ये हदीस कौन से सफ़े पे है, जरा इसकी वजाहत कर दीजिए, बराए करम, बड़ी मेहरबानी होगी। ये हदीस और इसका बाब और इसका सफा तो आपको दे दिया जाएगा, लेकिन मसला तो ये नहीं है ना, मसला तो नहीं बता दीजिए ना हजरत, आप बता क्यों नहीं रहे? नहीं बता दीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ ना, मैं खोल के पढ़ लेता हूँ, अभी 10 मिनट में पढ़ लेता हूँ। आप मुझे वजाहत कर दीजिए कि कौन सी हदीस आपने बयान की है और ये हदीस ली कहाँ से आपने, इसके रावी कौन है, इसकी सनद क्या है, बस इतना बता दीजिए, मैं भी खोल लेता हूँ। कितनी देर लगेगी मुझे खोलने में? अरे मेरे भाई, तो इसका मतलब ये कि मैं कुतुब खाने में बैठा हूँ क्या? मेरे पास सारी किताबें यहाँ मौजूद है। माज़अल्लाह मैंने कहा कि मेरे सामने किताब खुली हुई है। अच्छा, किताब का नाम बता दीजिए, किसमें ये हदीस किसमें मौजूद है, उस किताब का नाम बता दीजिए, इतना तो मालूम होगा। आप तो आलिम हैं, आप तो आलिम दीन है माशाअल्लाह। एहसान कादरी साहब के साथ आपका मैंने लाइव मुनाज़रा देखा है। सुनिए ना, सुनिए, अगर मुझे ये मालूम ना हो कि ये हदीस किस किताब के अंदर, तो मैं आलिम नहीं होऊंगा। नहीं, मैंने ऐसा तो बोला नहीं, मैंने बोला आप आलिम दीन है, आपको ज्यादा मालूम है ना। अरे मेरे भाई आलिम दीन है तो क्या हुआ, इसका मतलब ये कि थोड़ा मैं आलिमुल गैब हूँ। नहीं तो आप बिना तहकीक के हदीस पेश कर देते हैं क्या सामने वाले के पास? कैसे बना लिया आपने ये उसूल? नहीं, आप बिना तहकीक के हदीस पेश कर देते हैं क्या? अरे मेरे भाई, आप तो इस हदीस के मुनकिर तो नहीं ना है। चलिए, हमारा मौजू अभी यहाँ नहीं है, हमारा मौजू तारिक जमील पे है। या तो आप पल्ला झाड़ लीजिए तारिक जमील से कि वो हमारे रहनुमाई नहीं है या हमारे अकाबिर नहीं है, तो बात खत्म हो जाएगी। या तो आप मुझे बता दीजिए ऐसी तकरीर करने वाले पे हुक्म क्या नाफिस होगा, ये बता दीजिए। हुक्म लगेगा कि वो पक्का सच्चा मुसलमान है, जो उसका गलत मतलब निकाले उस पर कुफ्र का मतलब ये है कि वो सच्चा मुसलमान है, वो अल्लाह के चेहरे में से हूरों को नूर दिलवा रहा है, अल्लाह अपने हाथों से शराब पिलवा रहा है, और उसके बाद अल्लाह भीड़ में उतर के बंदों के कंधे पे हाथ रख के पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। मतलब वो पूरा का पूरा अक्स बना रहा है अल्लाह तबारक व तआला का, और वो सच्चा मुसलमान है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ, तो वो सुनिए, आप सुनिए, वो जो कह रहा है कि अल्लाह अपने हाथ से पिला रहा है, अल्लाह खुद से कर रहा है, तो ऐसे नहीं, हमें देखिए, हमें आपसे नहीं सीखना है, हमें कुरान और हदीस से सीखना है। तो ऐसी कोई इबारत हदीस में मौजूद है क्या? बता रहा हूँ, ऐसी इबारत कोई मौजूद है कि अल्लाह ताला ने कुरान की आयत में फरमाया है क्या कि मोमिनो मैं तुम्हें अपने हाथों से शराब पिलाऊंगा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन? अरे मेरे भाई सुनिए ना, तो फिर आप अपने सवाल को ही नहीं समझ रहे। एक होता है कि उन्होंने ये हदीस बयान की है, इसका हवाला मुझे चाहिए कि ये हदीस है कहाँ, ये अलग मसला है। फिर ये कि वो हदीस अगर सही नहीं, मैंने हदीस छोड़ दिया, मैंने हदीस की बात को छोड़ दिया जरा, मैंने हदीस की बात को पकड़ा ही नहीं, वो लोग सुन लेंगे, मैंने हदीस की बात को छोड़ दिया। मुझे सिर्फ इन 3 चीजों की आप वजाहत कीजिए कि अल्लाह अपने हाथों से शराब पिलाता है, ये कौन सी आयत में है या हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहाँ फरमाया। दूसरी चीज ये कि अल्लाह अपने चेहरे के नूर में से हूरों को नूर देगा, ये मुझे वजाहत कर दीजिए, ये मुझे बहुत खटक रहा है। तीसरी चीज ये कि अल्लाह खुद जमीन पे उतरता है और बंदे के कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि ए मोमिन तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ भटक रहा है, तू सही रास्ते पे आ जा। ये 3 चीज की मुझे वजाहत करिए। पहले आप ऐसा करिए कि वो मौलाना तारिक जमील साहब का वो बयान आप मुझे इरसाल कर दीजिए। अच्छा, आपको क्या करूं मैं? वो मौलाना तारिक जमील का वो बयान आप मुझे पहले इरसाल करें। अच्छा, फिर ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो हो गई। कोई अगर चलिए, ये तो हो गई तारिक जमील, सुनिए ना, ये तो तारिक जमील साहब की बात हो गई, ये तो हो गई आपकी तारिक जमील साहब की बात। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है, ये रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे पड़ी हुई है, ये तकरीर बहुत फेमस भी है, तकरीबन 2,500-3 हजार इसके व्यूअर्स भी हो चुके हैं और तकरीबन 650-700 के आसपास इस पे लाइक भी है और डिसलाइक भी 800 के आसपास है। अब मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने वो नहीं सुनी, तकरीर नहीं सुनी ऐसी कोई आपने?
नहीं, मैंने कोई ऐसी तकरीर नहीं सुनी है। लेकिन ये सुनिए, लेकिन अगर आप मौलाना तारिक जमील तो बहुत बड़े आलिम है, जिन्हें उनके मुतालिक नहीं, अगर एक आम इंसान भी अगर इस तरह की बात करे कि अल्लाह ताला अपने हाथ से पिलाएगा या अल्लाह ताला अपने हाथ से ऐसा करेगा, तो ये कोई गलत नहीं कह रहा है। हजरत XYZ मान लीजिए कि ये बात मैंने कही है, तीनों चीज मैंने कही है, XYZ मान लीजिए कि मैंने कही है, तो मेरे पे हुक्म क्या लगेगा? मेरे भाई आपको कहने से पहले ही तो मैं ये कह रहा हूँ कि मौलाना तारिक जमील तो बहुत दूर की बात, सब जैसा आप जैसा लोग भी, एक आम आदमी भी अगर ये कहे कि अल्लाह ताला उसको अपने हाथ से कर देगा, अपने हाथ से पिलाएगा, तो इसका कुछ भी गलत मतलब नहीं होगा। मतलब मेरे पे भी कोई कुफर का फतवा नहीं लगेगा। मैं अल्लाह का हाथ भी बता सकता हूँ, अल्लाह का चेहरे में से नूर भी दिलवा सकता हूँ, और अल्लाह को पहले आसमान पे भी उतरवा सकता हूँ, और अल्लाह को मैं भीड़ में भी ला करके बंदे के कंधे पे हाथ भी रखवा सकता हूँ, तो मेरे पे कोई हुक्म नहीं लगेगा, ये कहना चाहते हैं आप? कि आप मरकजी इख्तिलाफ ही को नहीं समझ रहे। अल्लाह का हाथ बोल करके अगर अल्लाह का हाथ बोल करके अगर आप हमारे और आपकी तरह हाथ मुराद लेंगे, हमारे और आपकी तरह कंधा मुराद लेंगे, तो यकीनन आप पर कुफर का फतवा लगेगा। तो मतलब मेरे पे कुछ कुफर का फतवा नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि जितने मुहद्दिस जो है, साहिब मुहद्दिस जो है, साहिब तफसीर, मिसाल के तौर पे तफसीर मदारिक लिखने वाले, तफसीर रूहुल अमानी लिखने वाले, जिन्होंने ये लिखा है कि मुतशाबी आयत से अकीदा लेना हराम है, तो उन्होंने फिर वहां पे गलत लिख दिया ना हजरत। पहले आपसे पूछ लेना कि हराम लिखने से पहले एक बार मुझसे पूछ लो। ले रहे हो? मैं कहाँ ले रहा हूँ, ये तो आपके तारिक जमील ने लिया है। मैं तो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उनके कुफ्र को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और आप उसको ढो भी नहीं पा रहे हैं, ना उनका डिफेंस कर पा रहे हैं, ना अपने आप को बचा पा रहे हैं, ना अपने इदारे को बचा पा रहे हैं। देखिए, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, मतलब अल्लाह की शान में गुस्ताखी कोई बड़ा मसला नहीं है। पूरी कायनात के बनाने वाला, जबरे को पैदा करने वाला, आपको बनाने वाला, मुझे बनाने वाले की शान में गुस्ताखी की जा रही है, और आप कह रहे हैं ये बड़ा मसला नहीं है। इससे बड़ा मसला आपको क्या चाहिए? गुस्ताखी अगर तेरे नजर में गुस्ताखी है तो भाई बैन करो ना, लगो बैन करो। हजरत मैं आपसे इतने अदब से बात कर रहा हूँ, आप तेरा बिना मत कीजिए। मैं आपके, देखिए आप आलिम हैं अपने इदारे के, कितने बड़े आलिम दिन पर कितने बड़े आलिम। अच्छा, इतने बड़े नहीं, सुनिए, तो ये मतलब ऐसा हो गया कि इतना बड़ा आलिम दीन अगर आपके वालिद को गाली बक देगा बिना कोई बात के, बिना कोई चीज के, तो भी आप जो है बड़े नरमी दिल से उसका स्वागत करेंगे कि आपने मेरे वालिद को गाली बक दी, चलिए ठीक है। तो फिर हुजूर की हदीस का क्या होगा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपने वालिद को, अपने वालिदैन को उफ तक ना बोलो। तो अगर तारिक जमील साहब आपके वालिद को कह दें कि आपके वालिद बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह बहुत काबिल हैं, लेकिन उनके अंदर एक खराबी है कि वो हरामीपन ज्यादा करते हैं, तो आप उनको कुछ भी नहीं बोलेंगे फिर? अरे मेरे भाई, आपका सवाल ही हिमाकत पर मबनी है ना। देखिए हजरत, पहली बात तो ये है कि आप लोग दारुल उलूम देवबंद के इतने बड़े बड़े मुफ्ती आलिम हैं। अभी ये बात अगर किसी अहले सुन्नत वल जमात के आलिम ने बोली होती तो कम से कम तो आपके इतने कॉल जो है सुन्नी आलिमों के पास पहुंच गए होते, और आप जो है मजे लेने के इसको कह रहे होते। लेकिन हमारे आलिमों पे सुनिए, हमें अहले सुन्नत वल जमात हनफी बरेलवी आलिमों पे गर्व है। हमें ये गर्व है कि अगर वो अपनी जुबान से कुछ कुफ्र कहते हैं तो फतवा पहले आता है। मिसाल के तौर पे ताहिरुल कादरी ने गुस्ताखी की, फतवा पहले आ गया, और बहुत से आलिमों ने गुस्ताखी की, उनका फतवा पहले आ गया। लेकिन आपके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, आप लोगों के अंदर इतनी जुर्रत और इतनी हिमाकत नहीं है कि अल्लाह की शान में बैठ के वो शख्स गुस्ताखी कर रहा है और आपके दारुल उलूम देवबंद से या दारुल इफ्ता से एक फतवा आ जाए तारिक जमील के खिलाफ। चलिए हजरत, हो गया आपका काम। बस ये मुझे लोगों के सामने लाना था कि ये बड़े बड़े जो आलिम बैठे हैं, ये अपने आलिमों की बड़ाई करेंगे, चाहे आलिम किसी की गुस्ताखी करे, चाहे वो अल्लाह ही की गुस्ताखी क्यों ना करे, या साहबा की गुस्ताखी क्यों ना करे, या हुजूर ही की गुस्ताखी ना करे, लेकिन ये लोग कुफ्र का फतवा नहीं लगाएंगे अपने आलिमों पे। तो बराए करम तमामी आवाम से मेरी दरखास्त है, भैया ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाएं, और ऐसे लोगों से अपने आबो अयाल को भी बचाएं, और इनसे दूर रहें। बराए करम। तुमने गुस्ताखी का इल्जाम लगा दिया, तुम्हें शर्म